Hello guys, welcome back to our YouTube channel Placement की उम्मीद. So today we are going to discuss Cognizant interview experience and the profile which is being discussed is Gen Z. In this interview we cover both technical interview round and HR interview round, and this interview is of Electronics and Communication Engineering branch. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम. तो जो पहला क्वेश्चन पूछा वो था टेल मी अबाउट योर सेल्फ. द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल सी इन ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू. ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको ये सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा मोस्टली, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. प्रिपेयर इट वेल एंड डोंट टेक इट कैजुअली. लाइक आई सेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज द. सो आप इसको कैजुअली तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, and this gives you power to drive the interview accordingly as you want. Whatever you are mentioning in the introduction, interviewer वही चीज़ें पूछेगा जो आप mention करेंगे अपने introduction में. So include your studies, internships, projects, hobbies, etc. in your introduction. The first question he asked me about the difference between C and C++. C++ is the enhanced or modified version of C language, which includes the concept of object-oriented programming language. And I also put a keyword for OOPS. OOPS is the programming model that is defined using classes and objects. तो अब जैसे कि आपने C एंड C++ के डिफरेंस में OOPS का टर्म को ले आया, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं कि इंटरव्यूअर आपसे OOPS के बारे में पूछेगा. तो ऐसे ही आप अपने इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं कि आप अगर कोई मेन टर्म बोलते हैं अपने पूरे इंटरव्यू में, तो उस मेन टर्म को इंटरव्यूअर पकड़ के आपसे पूछेगा ही पूछेगा. जैसा कि मुझसे भी पूछा गया था अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स. सो द मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स इज इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अब हो सकता था कि इंटरव्यूअर इसके बाद मुझसे किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में भी पूछ सकता था कि सो टेल मी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म और व्हाट इज इनकैप्सुलेशन. सो प्रिपेयर दीज टर्म्स एज वेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी अबाउट इज द प्रोजेक्ट डिटेल्स फ्रॉम द resume. As he already mentioned about the project in the introduction, so now explain briefly about major final year project, not about your minor project. If he particularly ask about your minor, then tell. Otherwise you only tell your major project. एंड ऑल्सो मैंशन उनको और ये भी बताइए कि आप टीम में काम कर रहे हैं या इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, और आपके प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हो गई है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ये भी आप उनको बताएंगे इसमें. तो जो अगला क्वेश्चन पूछते हैं वो व्हाट इज़ एरे. एन एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स stored at contiguous memory location. It is a derived data structure that contains a group of elements. Elements may be values or variables, whatever. So the next question is what is pointers. A pointer is a variable that stores the address of another variable. Unlike other variables that hold values of a certain type, pointer holds the address. This is the difference. Pointers are used to allocate the memory dynamically. Memories are allocated by two types, statically and dynamically. So pointers memory को dynamically allocate करते हैं. The next question he asked is from an electronic subject, that is what is inductor. An inductor is a coil consists of an insulated wire wound over an air or iron core with a fixed number of turns. जैसा कि मैंने बोला था कि आप अगर किसी कंप्यूटर साइंस के सिवाय दूसरी ब्रांच से हैं तो उससे भी क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड होंगे, तो आप उसको भी प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू में अपेयर होइएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज माइक्रोवेव. Microwaves are defined as the electromagnetic radiations with a frequency ranging between 300 MHz to 300 GHz, while the wavelength ranges from 1 mm to 30 cm around. Then he asked me, you know about OPAMP? उन्होंने इसका फुल फॉर्म भी नहीं बताया. ही जस्ट आस्क इन द शॉर्ट फॉर्म, यू नो अबाउट OPAMP, व्हाट इज OPAMP. सो आई नो OPAMP stands for operational amplifier.
and then I defined it. It is a DC coupled high gain electronic voltage amplifier with a differential input and usually a single ended output. Now, the next question he asked is four aptitude questions. हाँ, कॉग्निजेंट के एजेंसी के इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा, लगभग मेरे जितने भी दोस्तों के इंटरव्यू हुए थे सबसे एप्टीट्यूड के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहे हैं एप्टीट्यूड का तो आप ये सारे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पहला था वर्क एंड टाइम का, अगला भी वर्क एंड टाइम का था, और थर्ड क्वेश्चन था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और फोर्थ क्वेश्चन था परसेंटेज का। तो ऑल क्वेश्चंस आर इजी एंड बेसिक, सो नीड नॉट टू वरी. At last, some HR questions are being asked, like tell me about your family background. तो इसमें आप बताएंगे कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये आप बताएंगे पूरा प्रॉपर उनको। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन IT सेक्टर, यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ऐसा। तो उसके लिए भी एक अच्छा आंसर आपको प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। एंड टेल समथिंग अबाउट कॉग्निजेंट, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कॉग्निजेंट कंपनी कब फॉर्म हुई थी, किसने फॉर्म की थी, और अभी प्रेजेंट में इसका CEO कौन है। ऐसे इतना बता देंगे, इतना सफिशिएंट है। एंड ही आस्क 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव्स अबाउट कॉग्निजेंट, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको बताने पड़ेंगे। और नेगेटिव आपको ऐसा बताना पड़ेगा जो एक्चुअल में नेगेटिव उनको लगे भी ना और आपका नेगेटिव हो भी जाए। देन नेक्स्ट HR राउंड वॉज कंडक्टेड आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते के बाद मुझे मेल आता है कि योर HR राउंड इज शेड्यूल्ड ऑन दिस डेट एंड यू हैव टू अपीयर। और इस इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलमोस्ट एकदम आप सेलेक्टेड हो गए हैं इस प्रोफाइल के लिए, आप समझ लीजिए। अगर आपके पास HR राउंड का मेल आ जाता है कॉग्निजेंट में, यहाँ पे बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और HR आपसे बस एक दो क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको बॉन्ड के बारे में पता है, आर यू अवेयर ऑफ द बॉन्ड पॉलिसी, आर यू ओके विद द रिलोकेशन, आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो यू हैव टू आंसर ओनली इन यस एंड नो, दैट्स इट। देन ही आस्क यू टू show your Aadhaar card, show your mark sheets. So what I suggest is take both hard copy and soft copy as well. If he asks you to show in the camera, then show in the camera. If he asks you to present, then you can present as well. So if you are getting a call for the HR round, then most probably about 99% chances are there that you are selected for the profile. This is all for Jansi interview experience. This is the EC branch interview experience, and it all depends upon your luck. And yes, you have some basic knowledge about your subject also. Just be confident, not overconfident, and carry a decent smile in the interview. If you find this video helpful, then do like, share, and comment, and let me know in the comment section. Thank you.